Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus online lectures grade 6 science lecture number 4 lesson number 4 different kinds of materials. Students, bring a science book and notebook, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. Dear students, we will discuss following tasks in this lecture: properties of matter, and in properties of matter we will discuss them in detail. These are appearance, texture, luster, hardness, solubility, transparency. Dear students, you have to write your now you know question answers on your classwork notebook. We will do now you know question answers of this lesson and you have to do them on your science classwork notebooks. So first of all, we will discuss about a property of matter. What is property of matter? A property is what we use to describe an object. एक property उस एक टर्म को कहते हैं, उस एक खसूसियत को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. आइदर इट इज़ अपीयरेंस, टेक्सचर, लस्टर और एनीथिंग एल्स. यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं या हम उसका जो एक कैरेक्टर यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टी. So properties can be color, shape, smell, texture, solubility, hardness, etc. Now we'll discuss them in detail. So other than volume and mass, matter has many other properties on the basis of which we can distinguish them. अब हमने जो previous lecture था, we have discussed about the property of mass and volume. We have discussed them in detail. So now on the basis of this we can describe the materials and we can identify them as different kinds of materials. But today we will discuss about other properties rather than volume and mass on which we can distinguish the properties of matter and which we can distinguish matter itself. The most common property on the basis of which we can distinguish materials are appearance. So first of all we will discuss about appearance, that what is appearance and how we can classify things according to the appearance. अब आपको स्लाइड पर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में बहुत सारी यहाँ पर आपको पिक्चर्स इमेजेस दिए गए हैं जिसमें टेक्सचर, लस्टर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी एंड इसके जो तमाम तर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैस एंड वॉल्यूम, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है. Appearance, hardness, solubility, density, transparency and magnetic properties. These are basically the main and common properties on which we can distinguish the materials. First of all, we will discuss about appearance. Appearance is the first thing on the basis of which material can be distinguished from each other. सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जिसकी बेसिस पे हम मटेरियल्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं वो उसकी अपीयरेंस है. यानी ज़ाहरी शक्ल कैसी है, दिखता कैसा है, अपीयरेंस कैसी है किसी भी मटेरियल की. अब यहाँ पर आपको एक वुड लॉग नज़र आ रहा है, ठीक है, लकड़ी जो है आपको नज़र आ रही है यहाँ पर. एंड सेकेंडली नीचे आपके पास एक मेटल जो है वो नेल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रू है बेसिकली. So the materials usually look different from each other, and if two things look alike then they most likely have the same composition. बहुत सारी चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आती हैं. जैसे आपके पास यहाँ पर आपको एक लकड़ी जो है उसमें और एक आयरन नेल में या आयरन स्क्रू में आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है. अब अगर दो चीज़ें हैं आपके पास और दोनों दिखने में मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है, यानी वो एक दूसरे के जैसी बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आती हैं, वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ मुमासलत रखती हैं, तो इसका मतलब है कि अपेरेंटली वो दोनों चीज़ें सेम हैं एंड माइट बी दे हैव सिमिलर कंपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड प्लास्टिक. अब लकड़ी जो है वो किसी भी आयरन की चीज़ से, किसी भी प्लास्टिक की चीज़ से क्लियरली डिफरेंट है. तो अब वुड की कंपोजिशन जो है वो किसी भी प्लास्टिक या आयरन की बनी हुई चीज़ की कंपोजिशन नहीं हो सकती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, अगर आपको एक लकड़ी नज़र आ रही है, एक आयरन का पीस नज़र आ रहा है, एक प्लास्टिक का पीस नज़र आ रहा है, तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट हैं. अपीयरेंटली ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही हैं. सो वी कैन क्लासीफाई देम सेपरेटली. लेकिन इसी तरह अगर आपके पास दो तीन चीज़ें हैं जो कि वुड की बनी हुई हैं बट दे हैव द different type of structure but the material is same wood, so we can classify them on the basis of appearance in a similar group. Next we will discuss about texture.
So what is a texture? Texture is the way this something feels when it touch it. यानी टेक्सचर जो है वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो हमें महसूस होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो स्मूथ होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ रफ़ सरफेस होती है। तो जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो आपको हार्ड फील होगी, सॉफ्ट फील होगी, रफ़ फील होगी या स्मूथ फील होगी। ये जो आपको उसका उसकी सरफेस का आपको सरफेस फील होती है कि उसकी सरफेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये उसके टेक्सचर होते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी मटेरियल के सरफेस को डिस्क्राइब करे वो उसका टेक्सचर है। सो टेक्सचर इज़ द वे दैट समथिंग फील्स व्हेन वी टच इट। सम मटेरियल्स आर रफ, सम स्मूथ, सम आर पाउडर्ड एंड सम आर हार्ड। यानी डिफरेंट टेक्सचर हो सकते हैं, हार्ड, सॉफ्ट, स्मूथ, रफ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये टेक्सचर हैं किसी भी मैटर के जो हम फील कर सकते हैं। द मेन रीज़न दैट टेक्सचर ऑफ मटीरियल डिफ़र इज़ द वे इन विच देयर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड। अब टेक्सचर डिफरेंट क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है कि आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स की पैकिंग किस तरह से है। अगर उसके मॉलिक्यूल्स की पैकिंग का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है डिफरेंट मटेरियल्स का, देन दे विल हैव डिफरेंट टेक्सचर। बट इफ़ द पैकिंग टाइप ऑफ मटेरियल इज सेम देन दे विल हैव द सिमिलर टाइप ऑफ टेक्सचर। अगेन द सेम एग्जांपल, लकड़ी की बनी हुई तमाम चीज़ों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसके उसके अंदर जो सेलुलोज है या उसके अंदर जो दूसरे कैम्बियम या उसकी जो कॉर्क है वो प्रॉपरली उसी कंपोजिशन में प्लेस हुए हैं जिस कंपोजिशन में वो किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए यूज़ हुए हैं। तो इसका मतलब है एक टाइप की जो वुड है उसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप की वुड को यूज़ करते हैं तो उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा। सिमिलरली इसी तरह आप किसी पाउडर फॉर्म अगर मटेरियल को लेते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो आपको डिफरेंट फील होगा। The texture of materials differ in the way in which their molecules are arranged. The next one is luster. The shininess of materials is called their luster. चीज़ों की जो चमक होती है वो उनका लस्टर होती है, यानी उनकी जो, जैसे आप मेटल की किसी शीट को देखें तो बहुत ज़्यादा शाइन करती है, तो वो लस्टर है जो कि मेटल्स में पाया जाता है और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स में। सो सम मटेरियल्स शाइन बिकॉज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करती है दे शो लस्टर, और मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स जो हैं दे शो लस्टर। अब यहाँ पर आपको स्लाइड में भी आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको मेटल की कुछ यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में प्लेट्स दिखाई गई हैं। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और ये जो वाइट कलर का एक शाइनी स्पार्क नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली इसका लस्टर है। सो मेटल्स शो दिस प्रॉपर्टी एंड वी कैन एग्जाम्पलीफाई दैम इन अ वे। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स जो घरों में मोस्टली यूज़ होते हैं उनमें भी लस्टर होता है। एंड सम मटीरियल्स शाइन बिकॉज लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर सरफेस। एंड सिमिलरली इफ वी डिस्कस अबाउट वुडन यूटेंसिल्स दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ लस्टर्स और एनी वुडन ऑब्जेक्ट। तो मेटल्स में लस्टर शो होता है लेकिन वुड जो है या वुडन मटीरियल जो है उनमें लस्टर नहीं होता है। सो लस्टर इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। वी कैन से दैट लस्टर इज़ specified to the metals. Next property is hardness. Hardness is the ability of a material to resist deformation. यानी कि किसी भी मटेरियल की ये एबिलिटी कि वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सके, यानी उसकी जो अपनी शेप है वो उसको रिटेन रखेगा। उस पर आप जितना भी फोर्स लगा लें, जितना भी आप उसको किसी चीज़ से कंप्रेस करने की कोशिश कर लें, तो वो अपने आप को अपनी प्रॉपर शेप में रिटेन रखता है, अपनी शेप को चेंज नहीं होने देता, रेजिस्टेंस शो करता है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय अ स्टैंडर्ड टेस्ट वेयर द सरफेस रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन इज़ मेजर्ड। तो अब बेसिकली किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए से वो अपनी जो एबिलिटी है अपनी शेप को रिटेन रखने की, रेजिस्टेंस की एबिलिटी है, उसको अटेन करता है। यानी आप जितना मर्ज़ी प्रेशर अप्लाई कर लें, जितनी मर्ज़ी फोर्स अप्लाई कर लें, शेप ऑफ मटेरियल चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हार्डनेस ऑफ मटेरियल है। सो यू कैन फाइंड दैट फ्यू get easily pressed while others do not a little extent, and there are some materials which do not get pressed or at all. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी प्रेस नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो स्लाइट सा कंप्रेशन शो करते हैं या स्लाइट सी प्रेसिंग शो करते हैं। यानी डिफरेंट मटेरियल्स की जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आपके पास एक प्लास्टिक बॉटल है तो उसकी हार्डनेस बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक अगर आप स्टील का ग्लास ले लें या एक आप वुडन
लॉग ले लें तो तीनों मटेरियल्स की जो हार्डनेस है वो डिफरेंट होगी. सो सम मटेरियल्स विच डू नॉट गेट प्रेस्ड एट ऑल ट्राई टू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मेटल्स, वुड, स्पॉन्ज, वैक्स, चाक एक्सेट्रा. डिफरेंट मटेरियल्स को आप जो है प्रेस करने की कोशिश करें, फोर्स अप्लाई करें, देन यू कैन गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द हार्डनेस. तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आप मेटल्स ले सकते हैं, वुड, स्पंज मटेरियल्स होता है, वैक्स ले लें, चाक ले लें, इनको आप डीफॉर्म करने की कोशिश करें. यू कैन गेट अ वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. सो हार्डनेस ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं. द फर्स्ट वन इज सॉफ्ट मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज़ हार्ड मटेरियल. So first of all we'll discuss about the soft materials which can press or stretched easily are called soft material. ऐसे मटेरियल जिनको easily प्रेस किया जा सकता है, डिफॉर्म किया जा सकता है या स्क्रैच किया जा सकता है, ऐसे मटेरियल्स को सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं. While some other materials are hard materials, these are the materials that are difficult to press. अब आपके सामने यहाँ पर ऊपर आपको कुछ कॉटन वूल्स दिखाए गए हैं पिक्चर नंबर 1 में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सॉफ्ट मटेरियल है, इसको डीफॉर्म करना इजी है. सेकंड में आपके पास कुछ मेटालिक रोड्स दिखाई गई हैं जिनको कंप्रेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं है और ये हार्ड मटेरियल्स हैं. सो एग्जाम्पल, कॉटन इज़ अ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ अ हार्ड टाइप ऑफ मटीरियल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलेबिलिटी. सोलेबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉलिड की डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी होती है, यानी एक सॉलिड लिक्विड में किस हद तक डिज़ोल्व हो सकता है, ये इसकी सोलेबिलिटी है. अगर आपके पास एक ग्लास पानी का है, उसमें आप 1 चम्मच नमक को डिज़ोल्व करते हैं तो वो नमक किस हद तक उस पानी में डिज़ोल्व होता है, इसको हम उसका सोलेबिलिटी लेवल कहते हैं, यानी हल होने की खासियत कहते हैं. सो वी स्टार्ट द डेफिनेशन. द एबिलिटी टू डिज़ोल्व स्पेशली इन वाटर, यानी पानी में, खासकर पानी में डिज़ोल्व होने की जो एबिलिटी होती है उसको सोलेबिलिटी कहते हैं. अब हम यहाँ पर डिटेल देखेंगे मिसिबल लिक्विड्स एंड नॉन मिसिबल लिक्विड्स की. द लिक्विड्स विच डिज़ोल्व इन वन एंड अदर व्हेन मिक्सड विद ईच अदर आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड्स. अब यहाँ पर पहले हम मिसिबल एंड नॉन मिसिबल को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे कि सोलेबिलिटी है क्या. सो ऐसे मटेरियल्स जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी दो लिक्विड्स को आप एक दूसरे के साथ जब मिक्सअप करते हैं, जब वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएं, दैट मीन्स बोथ आर मिसिबल टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे में डिज़ोल्व होने की एबिलिटी रखते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास जार है, उसमें आपने पानी डाला है, उसमें आपने सैंड डाल दिया, तो सैंड पानी में मिक्स जो है वो नहीं होगा, ये नीचे बैठ जाएगा. एंड सेकेंडली आपके पास एक और जार है, उसमें आपने पानी डाला और उसमें ऑयल डाल दिया. अब ऑयल प्लस वाटर जो है ये भी मिक्स नहीं होगा. सो एथेनॉल एंड वाटर, आपके पास एथेनॉल एंड वाटर की अगर एग्जांपल ली जाए, उसको अगर हम देखें तो ये मिसिबल लिक्विड है. एथेनॉल और वाटर आपस में मिक्सअप हो जाते हैं. लेकिन जो मैंने अभी आपको सेकंड एग्जांपल दी स्लाइड पे, ये पहले आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको नॉन मिसिबल को समझने में आसानी हो. अब देखें यहाँ पर मिट्टी पानी में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती है, इसका मतलब है ये मिसिबल नहीं है. ऐसे मटेरियल जो बॉटम में बैठ जाएं, जार की तह में रह जाएं, वो मिसिबल नहीं है, बल्कि ऐसे मटेरियल्स जो आपस में बिल्कुल मिक्सअप हो जाएं, जैसे अगर आप दूध के अंदर पानी डाल दें तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है दूध का कौन सा है और पानी कौन सा है. तो दिस इज़ मिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड्स. इसी तरह एथेनॉल की एग्जांपल ने आपको कॉमन हाउस होल्ड एग्जाम्पल से एथेनॉल की एग्जाम्पल तक जो है इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ ताकि आपको इसके लिए समझना इजी हो. अब आपकी बुक पे एथेनॉल की एग्जाम्पल दी गई है. एथेनॉल इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है जी, ये ऑर्गेनिक लिक्विड है एक. इसमें अगर आप वाटर को डिज़ोल्व करते हैं तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और ये मिसिबल लिक्विड्स हैं. इनके जरिए बहुत सारे सोल्यूशंस भी बनाए जाते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. आगे है आपके पास नॉन मिसिबल लिक्विड्स, यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिज़ोल्व होने की एबिलिटी नहीं रखते, जैसा कि सैंड एंड वाटर हो गया, ऑयल एंड वाटर हो गया. आपने घर में ट्राई किया हो शायद कभी, अगर नहीं किया तो इसको ट्राई करके देखें. एक गिलास पानी में और उसमें 1 स्पून आप कुकिंग ऑयल या कोई भी ऑयल जो है आप उसको डालें. आप देखेंगे कि ऑयल बीइंग आप ऑयली लेयर ऊपर बना देगा पानी के ग्लास के ऊपर, बिल्कुल भी उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो बिल्कुल ऊपर पानी की
जो सरफेस है उसके ऊपर तैर रहा होगा, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है। दैट इज़ वाई वो बिल्कुल ऊपर तैर रहा होगा, उसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। और ये आपके पास नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स की एग्जांपल है। द लिक्विड्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वन अनदर एंड फॉर्म सेपरेट लेयर्स आर कॉल्ड एज नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स। तो ये सेपरेट लेयर्स बना देंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स कहेंगे, दैट कैन नॉट डिजॉल्व इनटू ईच अदर। सो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पर दो फैक्टर्स देखे। पहली बात तो ये कि ये डिजॉल्विंग पावर होती है किसी भी लिक्विड की या किसी भी मटेरियल की किसी दूसरे मटेरियल में। अब यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें, अगर हम साल्ट को या शुगर को एक गिलास पानी में मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर उनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली बाउंड नहीं है तो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मटीरियल जिसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जैसे होल्ड किया हो एक दूसरे को, तो उनको डिसॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। सो सिमिलरली टेक सम टेबल साल्ट एंड मिक्स इट इन वाटर, इट विल डिसॉल्व इन इट। तो साल्ट जो है पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ रिपीट दिस विद सैंड एंड चाक पाउडर। तो जब आप सैंड एंड चाक पाउडर के साथ सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो सैंड है वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगी, ये एक नॉन मिक्सेबल लिक्विड बनाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप मिल्क जो है उसको आप मिक्स कर सकते हैं वाटर में तो ये बिल्कुल मिक्सअप हो जाएगा, इट डिसॉल्व एंड डज नॉट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, तो ये मिक्सेबल लिक्विड होगा। ये वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने मिक्सेबल एंड नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स के बारे में देखी। इसी तरह से कुछ गैसेस जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर एंड इन अदर लिक्विड्स टू सम एक्सटेंट। सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सी में देख लें आप, जो मैरीन लाइफ है, इंडिविजुअल्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वो इसीलिए फिशेस वगैरह क्योंकि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको अटेन करते हैं और अपनी जो रेस्पिरेशन है उसको प्रॉपर्ली अपने गिल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो ये इसी वजह से है कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होती है। इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखें, वो भी ऑलमोस्ट सॉल्युबल होती है वाटर में, और उसको आप इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। अगेन द मेरीन लाइफ एग्जांपल अगर हम देख लें या फ्रेश वाटर एग्जांपल देख लें तो वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड सो मैनी गैसेज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर लाइक नाइट्रोजन एंड नियोन। बहुत सारी दूसरी ऐसी गैसेज भी हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होती, तो ये नॉन मिक्सेबल लिक्विड्स बनाएंगी। सो दिस इज़ बेसिकली अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट द सॉल्युबिलिटी। Next one we will discuss about transparency. Transparency is basically that transparent nature of a material, कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है। या प्रीवियस पीरियड में बहुत बार आप पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम ये देखेंगे कोई भी मटेरियल जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट है या उसमें कितनी जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट नेचर है। सो वी कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस ओनली व्हेन लाइट कैन पास थ्रू इट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स दैट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी we have divided these materials into 3 types. The first one is transparent, second one is translucent, and the third one is opaque. Transparent substances are basically the substances through which we can see clearly and light can pass through them easily, such as window panes, water and air. ऐसे मटेरियल्स जिनमें से लाइट इजीली पास कर सकती है और हम उनमें इजीली देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि खिड़की के शीशे, पानी और हवा, ठीक है, इनमें से लाइट बहुत इजीली पास कर जाती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है जिनमें से लाइट जो है वो ना गुजर सके। सो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। आपको बिल्कुल शफाफ मटेरियल्स नज़र आते हैं और उनके ज़रिए से आप देख सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ translucent. Translucent substances are basically the substances through which we can see partially and light can pass through them partially. ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से धुंधला नज़र आता है, यानी आप कुछ एक्सटेंट तक तो देख सकते हैं, बहुत क्लियर आप नहीं देख सकते हैं। और ये इसी वजह से है क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास होने नहीं देते हैं, यानी सारी की सारी लाइट पास नहीं करती है बल्कि कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी पार्शली एंड लाइट कैन पास थ्रू देम पार्शली, सच एज बटर पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक है, इसके लिए आप बटर पेपर की एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड फ्रोस्टेड ग्लास की एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पर बटर पेपर की एग्जांपल और फ्रोस्टेड ग्लास की एग्जांपल दो आपके पास चीज़ें हैं। इसी तरह अगर आप देखें आपके पास जो एक पेज है, सिंपल एक पेज है, वो भी आपके पास ट्रांसलूसेंट
शीट की एग्जाम्पल है। द सेकेंड वन इज़ opaque substances. So here the substances through which no light can pass and one can not see through them. यानी इनमें से बिल्कुल लाइट पास नहीं करती है, इनमें से बिल्कुल भी लाइट जो है वो पास नहीं करेगी तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा. We can not see through them such as wood and the brick. So these are known as opaque objects. लाइट फॉल करेगी एंड रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कोई एक वेव भी लाइट की जो है पास थ्रू नहीं करेगी, और अगर लाइट पास नहीं करेगी तो फिर हम ऑब्जेक्ट्स को इसके थ्रू नहीं देख सकते. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करती और वो सी थ्रू नहीं होते हैं उनको हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. एग्जांपल वुड आ सकता है और सैंड आ सकता है. ओपैक ऑब्जेक्ट्स कैन कास्ट शेडोज़, यानी ओपैक ऑब्जेक्ट्स जो है उनका शेडो बनता है. ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा शेडो बन रहा होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर द एग्जाम्पल ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट्स. द नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी. The next property of matter is density, and we can start it by the definition. The mass per unit volume of a substance is called its density. यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करें जैसे सर्टन लाइक 2 क्यूबिक सेंटीमीटर 3 क्यूबिक सेंटीमीटर, जितने भी यूनिट वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं तो उसमें मैस कितना है ये डेंसिटी है. यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी. Iron has higher than cotton, and therefore if we take the same mass of both of them, cotton will occupy more volume. अब जो आपके पास आयरन है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉटन, लेकिन कॉटन वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की जो आयरन हैज़ द हायर देन द कॉटन, एंड देयरफॉर इफ़ वी टेक द सेम अमाउंट ऑफ मैस बोथ ऑफ देम, अगर हम दोनों का सेम अमाउंट लेते हैं तो कॉटन जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू iron. So these two properties can be studied together through one property named density. So mass per unit volume यानी mass और volume का जो relation है उसको हम density की term में learn कर सकते हैं. So it is because of density of some materials float on water while others shrink. अब ये density ही है, जैसा कि पीछे हमने solubility में डिस्कस किया कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, और सैंड की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो पानी के जार में नीचे बैठ जाती है. तो फ्लोट करने की या सिंक करने की एबिलिटी भी इसी डेंसिटी की बेस पे है. ऐसी मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी वो फ्लोट नहीं करेंगी, वो सिंक हो जाएंगी यानी नीचे बैठ जाएंगी, और ऐसी मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले में कम होगी वो फ्लोट करेंगे. सो द मटेरियल्स विद अ लो डेंसिटी देन वाटर, फॉर एग्जांपल वुडन लोग्स फ्लोट्स on water, and the substances which are with a greater density than water, for example iron nails, sink in water. The next one is thermal conduction. Thermal conduction is basically the conduction of heat. Therm mean heat, and thermal conduction is basically transfer of energy in the form of heat arising from temperature difference between adjacent part of the body. एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, इसको हम थर्मल कंडक्शन कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दैट इज़ वाई कुकिंग वेसल्स बिकम हॉट. चूँकि तमाम की तमाम जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, मेटालिक मटीरियल होता है और हीट बहुत ईजीली पास कर सकती है. इसीलिए सारी की सारी जो कुकिंग वेसल्स होती हैं वो जैसे ही आप उनको स्टोव पे रखते हैं वो हीट होना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देती हैं. एंड द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स. तो ऐसे सब्सटेंसेस यानी मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल सब्सटेंसेस आर नोन एज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट लाइक वुड एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा. सो दैट इज़ वाई द वुडन हैंडल ऑफ आ फ्राइंग पैन डज नॉट बिकम हॉट. और यही वजह है कि जो वुडन हैंडल होता है फ्राइंग पैन का वो हॉट नहीं होता है, वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होता. तो वुडन हैंडल जो होगा वो बिल्कुल भी हॉट नहीं होगा. नेक्स्ट वन है हमारे पास एग्जांपल, अगर हम देखें तो मेटल्स की आ जाएगी. बैड कंडक्टर्स की अगर हम देखें तो इसमें वुडन मटेरियल आ जाएगा. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन. Diffusion is basically the process of gases and liquids separating into a surrounding substance is known as diffusion. यानी कि गैशियस और लिक्विड मटेरियल्स का सराउंडिंग में स्प्रेड होना, इर्द गिर्द स्प्रेड हो जाना यानी फैल जाना,
जैसे अगर आप परफ्यूम्स को देखें तो जैसे आप उनका स्प्रे करते हैं तो वो एक वेजल से निकलकर पूरे इन्वायरमेंट में, पूरी जहाँ एयर जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनकी स्मेल और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं। सो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। हाई ग्रेडियंट से इन्वायरमेंट में किसी लिक्विड का या किसी गैस का स्प्रेड होना क्या है, डिफ्यूजन है। एग्जाम्पल, इफ़ वन ओपन्स अ परफ्यूम बॉटल एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अगर आप रूम के एक कॉर्नर पे इसको ओपन करते हैं, देन स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, तो पूरे रूम में इसकी स्मेल जो है स्प्रेड हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज परफ्यूम्स मिक्स विद एयर, क्योंकि जो परफ्यूम होता है वो एयर के साथ जो है बहुत ईजिली मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। यू हैव डिस्कस्ड and you have learned them in detail in the previous periods. So conductors are basically the materials which conduct electricity. ऐसे material जो electricity को conduct करेंगे वो कंडक्टर्स होंगे। मोस्टली इनमें एग्जांपल आ जाती हैं मेटल्स की, कॉपर एंड आयरन वायर्स। अब यहाँ पर आपको कुछ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर मटेरियल दिखाए गए हैं। यहाँ पर कॉपर वायर एंड आयरन आर बेसिकली कंडक्टर्स। नेक्स्ट वन इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर्स आर बेसिकली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली पास नहीं करने देते और उसको रेजिस्ट करते हैं, और दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स आर वुड, रबर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होना क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिनमें ये एबिलिटी हो दैट दे कैन अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट्स। सो द सब्सटेंसेस गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिक मटीरियल टुवर्ड द मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड आर सेड टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर आपके पास आयरन जो है उसका आयरन का जो मटेरियल है वो आपको दिखाया गया है। आयरन मेटल हो सकती है, कोई भी दूसरी मेटल हो सकती है जिसका आपको यहाँ पर दिखाया गया मटेरियल, उसको मेटल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। सो दिस आयरन और दिस मेटेलिक मटेरियल इज़ बेसिकली मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सिमिलरली बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और उसको यूज़ किया जा सकता है जनरेटर्स एंड मोटर्स में एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। एंड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर बेसिकली द मैग्नेटिक मटेरियल्स। और बहुत सारी दूसरी मेटल्स होती हैं जो कि अट्रैक्ट नहीं होती हैं, जिनमें एलुमिनियम आ सकता है, कॉपर आ सकता है, यानी कि तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं वो लाजमी नहीं है मैग्नेटिक, और बहुत सारी मेटल्स भी नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होती हैं। सो एग्जाम्पल्स आर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। Okay dear students, now we have some now you know question answers. So question number 1 is on the page number 36. Say whether the statement is true or false. Texture is the way that something feels when we touch it. So it is true. Stainless steel utensils do not show luster. False. Salt does not dissolve in water. This is also false. Gas dissolve in water. फॉल्स। अब गैसेस डिजॉल्व इन वाटर है तो हर गैस डिजॉल्व नहीं होती है, दैट इज़ वाई वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट फॉल्स। ओपैक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। फॉल्स। दीज आर द बेसिकली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। नाउ यू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। आंसर these questions in a sentence. Single sentence answer है what is density. So answer is that the mass per unit volume of a substance is called its density. Question number 2, why do things sink in water? Objects that are more than water that objects sink in water, that have more density than water, यानी ऐसे objects जिनकी density ज़्यादा होती है। Objects that are having more density than water can these objects can sink in water. Do metals allow heat to pass through them? Yes, metals allow heat to pass through them. How does perfume spread in the air? अभी हमने लास्ट पॉइंट यही डिस्कस किया that perfume spread in air by the process of diffusion. Why do electrical wires have as rubber coating? तो electrical wires जो हैं उनकी rubber coating क्यों होती है? To prevent accidental contact with other conductors of electricity, ताकि वो किसी दूसरे electrical conductor के साथ contact ना करें और इसकी वजह से कोई जो है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस ना हो, इस वजह से कोटिंग जो है वो प्लास्टिक की जाती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क. ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड देन राइट डाउन योर डायरी. You have to learn all the question answers of now you know and write them on your science क्लास वर्क नोटबुक्स. आपने अपना जो बुक वर्क है उसको पेज नंबर 36 पर आप लोगों ने करना है. एंड सेकेंडली आपके जो नाउ यू नो के क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपने अपनी क्लास वर्क नोटबुक्स के ऊपर राइट डाउन करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एंड ऑफ द लेसन. अल्लाह हाफिज़.